بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمرانوں میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے جن کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کی مثال دشمنان اسلام بھی دیا کرتا ہے۔ اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مجاہد کے اتہاس کے بارے میں جانتے ہوں گے، کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیروں سے زیادہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ہیروں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمراں کا اتہاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ یہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے تقریت شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں نے مصر، شام یعنی سیریا، یمن، عراق، حجاز وغیرہ ملکوں کو فتح کیا۔ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر مجاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اسی لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں اتہاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 634 عیسوی سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی فتح تھی بیت المقدس کی فتح۔ پھر سلجوقی سلطنت جب کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہارنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر ڈالی۔ یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر الگ الگ وقت پر کئی مسلم حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کئی کوششیں کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ایک منبر بھی بنوایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے فتح کے بعد مسجد اقصی میں اپنے ہاتھ سے یہ منبر لگاؤں، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ فتح بیت المقدس سے پہلے ہی ان کا دیہانت ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی تھے۔ مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا اس میں صلاح الدین ایوبی موجود تھے، اور اس فوج کی کمان شیر کوہ کے ہاتھ میں تھی، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد 1164 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی بہادری اور تیز ذہنیت کو دیکھتے ہوئے مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اسی وقت یمن کو بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو ان کا کوئی لائق اترادھیکاری نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت پر صلاح الدین ایوبی کو قابض کر دیا، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 21-22 سال ہی تھی۔ اس عمر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کس قدر بہادر اور بہترین حکمرانی کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کا جذبہ بھرا پڑا تھا۔ اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا انہوں نے ٹھان لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو پاور بھی دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ شراب میں دھت رہے تھے، زناکاری بالکل عام ہو چکی تھی۔ مصر کی حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے ایجنٹ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان دونوں مصیبتوں سے لڑنا تھا۔ پہلا تو شراب اور زناکاری کو ملک سے ختم کرنا، جو کہ اتنا آسان نہ تھا، اور دوسرا ان غدار مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالنا جو عیسائیوں کے ایجنٹ بن بیٹھے تھے، اور ادھر بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے صلیبیوں سے بھی جنگ جاری رکھنی تھی۔
तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था, जिसका नाम नाजी था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि ये पक्का ईसाइयों का एजेंट था और उन्हीं के लिए मिस्र में काम कर रहा था। तो उसने जब देखा कि 22 साल का नौजवान दीन इस्लाम की बातें कर रहा है, बैतुल मकदिस को फतह करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो जब वो अपने शैतानी साथियों की महफिल में बैठा तो उसके साथियों ने कहा कि अब तो तुम्हारे इरादे कामयाब ना होंगे, क्योंकि अब एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो गया है। तो उस ईसाई एजेंट नाजी ने हंसकर कहा कि अरे ये तो बच्चा है, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, मैं देख लूंगा सलाहुद्दीन अय्यूबी को। लेकिन बहुत जल्द पता चल गया कि ये बच्चा नहीं, ये नाव को चने चबवाने वाला योद्धा है। दोस्तों, उस दौर में जब ईसाई मुसलमानों से जंग तलवारों की ताकत पर ना जीत पाते तो मुसलमानों की फौज में अपने एजेंट भेज देते और दो चीजों से मुस्लिम हुक्मरानों को अपने वश में करने की साजिश करते, एक तो शराब, दूसरी खूबसूरत लड़कियां। ईसाई हुक्मरान अपनी ही बेटियों को मुस्लिम हुक्मरानों के खेमे में ये कहकर भेज देते कि जाओ तुम उसके साथ कैसे भी करके जिना करो, उसको अपनी तरफ माइल करो, अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत देगा। और अक्सर हुक्मरान इन ईसाइयों की इस शैतानी साजिश का शिकार हो जाते। जब बैतुल मकदिस के ईसाई हुक्मरानों को पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का जंगजू लड़का बैतुल मकदिस को फतह करने की बात करता है, तो उन ईसाइयों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही चाल चली। नाजी, जो मुसलमानों के भेष में ईसाइयों का एजेंट था, उसने कई मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी को अलग अलग महफिलों में बहाने से शराब पिलाने की कोशिशें की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पक्के मोमिन थे। वो कहते कि ये मुस्लिम देश है, यहाँ शराब पीना हराम है और मैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा। जब नाजी को लगा कि सलाहुद्दीन तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, तो उसने लड़की वाला फॉर्मूला अपनाया। एक रात को नाजी ने एक खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए तैयार कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर बोला कि सुल्तान, एक लड़की परेशान है, बहुत दूर से आई है, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, बुला लो। नाजी ने कहा नहीं नहीं सुल्तान, वो आपसे अकेले में ही अपनी परेशानी बताने की जिद कर रही है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि ये बदबख्त मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे खेमे में जा रहा हूँ, लड़की को भेज देना। फिर उस लड़की को भेजा गया। हालांकि पूरी प्लानिंग ये थी कि उस लड़की को कहा गया था कि तुम जाओ और किसी न किसी तरह सुल्तान के साथ फहश हरकतें करो और सुल्तान को अपनी तरफ माइल करो, और अगर तुम सुल्तान को एक गिलास भी शराब पिला दो तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब लड़की अंदर गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे देखते ही अपने कंधे से चादर उतारी और उस लड़की को दी और कहा कि इससे अपना बदन ढक लो। इस अमल से वो लड़की अपने आप पर शर्मिंदा हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो वो लड़की इस सवाल का जवाब ना दे सकी, क्योंकि ईसाई ऐसी ही लड़कियों को बचपन में ही कहीं से अगवा कर लिया करते थे और इस तरह के कामों के लिए उनकी खास परवरिश किया करते थे। फिर वो लड़की रोते हुए बोली कि इन लोगों ने मुझे आपके साथ फहश हरकतें करने के लिए भेजा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा कि जाओ, उनसे कह दो कि जो काम तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। जब वो लड़की अपने सरदारों के पास गई तो अगले ही दिन नाजी उठा और शोर मचाने लगा कि देखो, हमारा सुल्तान तो शराबी है, वो तो लड़कियों के साथ जिनाकारी करता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे से बाहर आए तो लोगों में उनकी बातें चल रही थी। सुल्तान ने कहा कि जरा उस लड़की को तो पूछ लो कि रात को क्या हुआ था। जब लड़की को बुलाया गया तो उस लड़की ने सबके सामने कहा कि जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम, मैंने सलाहुद्दीन जैसा बहादुर और शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। मैं रात भर उनके साथ रही, मगर सुल्तान ने एक गलत निगाह भी मुझ पर न डाली। फिर उस नाजी का काला मुंह हुआ। तो दोस्तों, ये किरदार था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, और एक किरदार आज हमारा है जो व्हाट्सएप और फेसबुक सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि लड़कियों को पटा सके। जब ईसाइयों की शराब और लड़की वाली साजिश काम न आई तो इन्होंने सुल्तान को कत्ल करने की तीसरी साजिश रचनी शुरू कर दी। इन लोगों ने हसन बिन सब्बाह से मदद मांगी, जो दुनिया का बदतरीन इंसान था। कहता तो अपने आप को मुसलमान था, मगर असल में बातिनी था। इसने अपने लोगों की एक ऐसी फौज बना रखी थी जो बड़े बड़े लोगों को किसी भी हालत में मारने की ताकत रखती थी, और आज हम इस फौज को असैसियंस के नाम से जानते हैं। अलग अलग वक्त पर 3 बार असैसियंस ने सुल्तान सलाहुद्दीन पर हमला किया,
मगर वो हर बार इन लोगों को मार गिराते। यहाँ तक कि ये असैसिन्स सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज में उनके बॉडीगार्ड के रूप में भी शामिल हो गए थे। और एक दोपहर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में सो रहे थे, तब इन असैसिन्स ने मौका पाकर सुल्तान पर हमला कर दिया। मगर सुल्तान नींद में भी जंग की हालत में होते थे। हमला निशाने पर नहीं लगा तो सुल्तान की आंख खुल गई और एक पल में ही सुल्तान ने जान लिया कि ये फिदाई यानी असैसिन्स है। तो सुल्तान ने उसी वक्त अपने मुक्के से उस फिदाई के सिर पर ऐसी चोट मारी कि उस फिदाई के सर की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो वहीं गिर पड़ा। ईसाई हुक्मरान परेशान हो चुके थे कि इस सुल्तान से कैसे निपटा जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली तो उन्होंने बैतुल मकदिस की तरफ चढ़ाई करने का इरादा किया। इनमें जिहाद का जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था बैतुल मकदिस की फतह। हित्तीन के मैदान में मुसलमानों की ईसाइयों से भीषण जंग हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ईसाइयों का सफाया करते हुए बैतुल मकदिस की ओर बढ़ रही थी। ईसाइयों के फौजी मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों के बीच जाकर दुश्मनों के सर कलम कर रहे थे। हजारों ईसाइयों को जंग में कत्ल कर दिया गया और कई हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने आगे बढ़कर बैतुल मकदिस पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और पूरे फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो मिंबर जिसे नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था अपने हाथों से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस को फतह करने के बाद वैसा कोई अत्याचार नहीं किया जैसा इस शहर पर कब्जा करते वक्त यूरोप की मसीही फौजों ने मुसलमानों पर किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फिदिया लेकर ईसाइयों को शहर में रहने दिया तथा जो ईसाई गरीब थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनके फिदिया की रकम खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिकुल आदिल ने चुकाई। जब यूरोप के ईसाई हुक्मरानों के पास ये खबर पहुंची कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस पर कब्जा कर लिया है तो पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी अपनी फौजें लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस ईसाई सेना से जिसकी तादाद तकरीबन 6 लाख थी, 3 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकेले ही लगातार जंगें लड़ी। हालांकि उनकी फौज की तादाद सिर्फ कुछ हजारों में ही थी, परंतु फिर भी ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने में कामयाब न हो सके क्योंकि अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे। और फिर ईसाई हुक्मरान थक हार कर सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके खाली हाथ वापस अपने मुल्क लौट गए। यह जंग तीसरी सलीबी जंग कहलाती है। दोस्तों, सलीबी जंग उसे कहते हैं जिसमें ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के साथ जंग करते हैं। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित कर दिया कि वह इस वक्त के दुनिया में सबसे ताकतवर हुक्मरान है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर सिपाही सालार तो थे ही, इसके साथ ही वे बहुत बड़े दरियादिल इंसान भी थे। उनकी दरियादिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सुल्तान ने बैतुल मकदिस को फतह किया तो फलस्तीन की ईसाई आवाम को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया, न ही वहां कोई खून खराबा हुआ, बल्कि सुल्तान तो ईसाइयों से इतनी रहमदिली से पेश आए कि आज भी ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन की इज्जत करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब बैतुल मकदिस फतह किया तो मसीहियों से समझौता हुआ और सुल्तान ने मसीहियों को बैतुल मकदिस की जियारत की इजाजत दे दी। जब यूरोप के ईसाइयों को पता लगा कि वे बैतुल मकदिस की जियारत कर सकते हैं तो ईसाई इतनी तादाद में फलस्तीन आने लगे कि शाह रिचर्ड को उनकी व्यवस्था करना मुश्किल होने लगा। उसने सुल्तान से कहा कि चंद लोगों को ही बैतुल मकदिस की जियारत करने की इजाजत दी जाए। इस पर सुल्तान ने कहा कि ज़ायरीन लंबा सफर करके मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं, उनको बैतुल मकदिस की जियारत करने से रोकना सही नहीं है। सुल्तान ने न केवल उन ईसाई ज़ायरीन को हर तरह की आज़ादी दी बल्कि अपनी ओर से लाखों ईसाई ज़ायरीन के लिए मेहमान खाने, सुविधाएं और आराम की व्यवस्थाएं की और खुद उनके साथ बैठकर बातें करते और उनसे अपनी मोहब्बत जाहिर करते। ये थे एक मुस्लिम हुक्मरान जिन्होंने ऐशो आराम और ताकत के जोर पर नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत के जोर पर लोगों के दिलों पर राज किया। और दूसरी तरफ वे ईसाई हुक्मरान जिन्होंने मार काट और खून खराबे के अलावा इस दुनिया को कुछ ना दिया।
صلاح الدین ایوبی سے اللہ کو جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنا مقصد پورا کیا اور تاریخ میں ایک عظیم الشان حکمران بن کر 1193 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔